Sit comfortably, everyone. Good morning, everyone. Settle down yourself. We can begin our class. Make yourself comfortable on your mat. ध्यान के किसी भी आसन में आराम से बैठ जाइए. Try to keep your spine straight, shoulder relaxed. No more tightness or stiffness at any parts of the body. Now bring your attention towards your breathing. Deeply inhale and completely exhale. Now please join your palms in front of your chest. We'll start with Om chanting. Inhale. Om. Again. Om. Inhale. Om. Now please repeat after me. Prayer. Om Sahana Vavatu Sahano Naktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. You will gently touch your face, around of your neck muscles. Drop your hands and open your eyes with your blinks and smile. Today, as we have the last class, in a sequence of the classes, today we'll try to quickly repeat all the joints practices. So we'll start with the wrist joints. Bring your arms at the shoulder height, widely open your fingers. Now let's move your wrist up and down. Keep going, up, down, keep going, down, move on, down, carry on, down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. 3 more times, down, 2, down, 3, down. Bring your arms down, relax your shoulders and the arms. One deep inhalation and exhalation. Now next, make a fist up your palm. We go for the wrist rotation.
clockwise and anti-clockwise. Let's rotate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop here and reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Dropping your arms, please. Another deep inhalation and exhalation. Next, we go for shoulder. Bring your palms on your shoulder, elbow closer. Now, from down to up. Keep going. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Stop here. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Dropping your arms, collapsing your shoulders, neck muscles relax, chest muscles relax. Now from here, we go for the neck movement. Gently move your neck up and bring it down. Gently, everyone. Again, up. Bring it down. Don't go fast, go slowly, please. 5 more times. Inhale, up. Exhale, down. Keep repeating, please. Inhale, up. Exhale, down. 3 more times. Inhale, up. Exhale, down. Go on, please. Inhale, up. Exhale, down. One more time, please. Inhale, up. Exhale, down. Come back, please, everyone. Now, next, hands in and out breathing. Bringing your arms at the shoulder height. After the joints practices, we go for breathing exercise to improve our lungs capacity. Let's begin. Go. Inhale, open the arms, expand the chest. Exhale, back to normal position, please. Try to have a deep inhalation. Inhale. Exhale. Repeat 5 more times. Inhale. Keep going. Inhale, लंबी सांस लीजिए. कोशिश कीजिए फेफड़ों में हवा भरने की. सांस छोड़ते हुए वापस 3 बार और. Inhale. Exhale. 2 बार और लंबी सांस लीजिए. सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए. 1 बार और. इनहेल, लंबी सांस लीजिए. पूरी तरह से हाथों को खोलिए. सांस छोड़ते हुए वापस आके हाथ को नीचे, कंधे, गर्दन के मांसपेशियों को ढीला छोड़िए. आराम की अवस्था में लाइए. थोड़ा समय रुकें. अब यहां से दोनों हाथों को बगल में यूं रखेंगे. अब यहां से ऊपर ले जाएंगे. सांस लेते हुए शुरू करते हैं. इनहेल, हाथ ऊपर. एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे. ऐसे 5 बार और रिपीट करेंगे हम लोग. चलिए. इनहेल, लंबी सांस लीजिए. हाथ को पूरा ऊपर खींचने की कोशिश कीजिए. सांस छोड़िए, हाथ को नीचे ले आइए. फिर से कीजिए. इनहेल,
एक्सेल सॉरी 3 बार और इनहेल, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए, फिर से लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए, एक बार और लंबी सांस लीजिए। अब हाथों फिंगर्स को ऐसे लॉक करके हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए, जितने अच्छी तरह से आप हाथों को ऊपर खींचे जिससे कि आपके स्पाइनल मसल्स का खिंचाव महसूस कर सके। नाउ मेंटेन इन दिस पोजीशन, इस अवस्था में बने रहिए 6 गिनती तक, सांसों की गति सामान्य, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए, हाथों को नीचे लाइए, एक बार फिर से लंबी सांस लीजिए, गहराई से सांसों को छोड़िए। अब यहाँ से जिस अवस्था में बैठे बस कोशिश करके पीठ सीधी रखनी है और हाथ को पीछे ले जाइए। हाथ को पीछे ले जाके हमें अपनी पीठ में खिंचाव महसूस करवाना है। कैसे? दोनों हाथों की सहायता से कोशिश कीजिए कि अपनी पीठ को कैसे आप आगे की तरफ धकेलते हैं और कंधे को पीछे की तरफ लाते हैं, जिससे कि आपका पूरा चेस्ट एक्सपैंड हो जाएगा। ये अभ्यास बहुत अच्छा है पीठ के लिए, साथ ही साथ ब्रीदिंग एलिमेंट्स के लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस है, जिससे कि आपका चेस्ट एक्सपैंड होता है तो चेस्ट मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रेंथ मिलती है। गर्दन को आप किसी भी आराम की अवस्था में रखें, ज्यादा पीछे लटकाए ना, और इस अवस्था को बना के रखें। 6 गिनती तक रुकें। 6, कोशिश करें पीठ को आगे की तरफ खींचने की, आगे की तरफ धकेलने की, और कंधे को पीछे की तरफ लाने की। थोड़ा और कोशिश करें। 6, सांसों की गति सामान्य, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए। अब शरीर में हुए पीठ में खास करके हुए तनाव को धीरे धीरे रिलीज करते हुए आगे की तरफ झुकिए, आगे की तरफ झुकिए। हाथों को यूं लॉक करके सर को जमीन से लगाने की कोशिश कीजिए और हाथ को ऊपर खींचिए। इस अवस्था में बन के रहिए। पीठ की प्रत्येक मांसपेशियां खींचती हुई, कंधे की भी। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकिए, सांसों की गति सामान्य। कोशिश करेंगे कि आपका हिप जमीन से उठे ना, जमीन पे ही रखा रहे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। कंधे को आराम की अवस्था में लाइए, पीठ को भी आराम की अवस्था में लाइए। एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़िए। अब यहाँ से मुझे देखेंगे आप लोग, दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पे रखेंगे, दाएं हाथ को बाएं घुटने पे रखेंगे और बाएं हाथ को शरीर के पीछे, बाएं हिप के थोड़ा पीछे ले जाएंगे। ये ट्विस्टिंग है, इसको शरीर को ट्विस्ट करना है। पहले लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए शरीर को बाएं तरफ घुमा लीजिए, जितना आप घुमा सके, जिससे कि आपके पेट पे एक ट्विस्टिंग इफेक्ट हो, जो कि पेट की मांसपेशियों के लिए, पेट के ऑर्गन्स के लिए काफी अच्छा है। इस अवस्था में 5 गिनती तक रुके। 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ करना। अब बाएं हाथ को दाएं घुटने पे रखें और दाएं हाथ को पीछे ले जाएं।
लंबी सांस लीजिए पहले, सांस छोड़ते हुए, ध्यान रखेंगे ब्रीदिंग का बहुत बड़ा काम होता है आपके आसन में। सांस छोड़ते हुए शरीर को घुमाएंगे, और एक बार आप फाइनल पोजीशन पे आ गए, ये आपका फाइनल पोजीशन है। यहाँ पे सांस को रोकना नहीं है, सांसों की गति सामान्य रूप से चलने देना है। 6 गिनती तक रुके, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाइए। वापस आने के पश्चात दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, जमीन के ऊपर दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। घुटने, एंकल्स, थाई मसल सबको थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए पहले। अब यहां से जैसे कल किया था हम लोगों ने घुटनों के लिए, दाएं पैर को उठा के हाथों को फिंगर्स को इंटरलॉक करके थाई के नीचे पकड़ेंगे यूं, और पैर को बिल्कुल करीब शरीर से लगा के रखेंगे। अब यहां से सांस लेते हुए लंबी सांस लीजिए, पैर को सीधा कीजिए जिससे पूरा घुटना आपका सीधा हो, पैरों में खिंचाव का अनुभव करेंगे आप। सांस छोड़ते हुए वापस पेट की तरफ पैर को दबाएंगे। ऐसे 5 बार और सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 2 बार और सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 1 बार और सांस लीजिए और पैर को दोनों हाथों से अपने टखनों के सामने पकड़िए, या थोड़ा पीछे भी हो जहां तक आप पकड़ सकें। And then keep your spine straight, leg, especially your legs should be straight. Height is not important. And then maintain your position. Feel stretching on your right leg for the 6 breathings. 6. Maintain कीजिए, हाँ। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए, पैरों को नीचे ले आइए, दाएं पैर को आराम रखिए। अब यही अभ्यास हमको बाएं पैर से करना है। बाएं पैर को मोड़िए, दोनों हाथों से पैर को पकड़िए और इसे खींचते हुए पेट के करीब लाइए। अब यहां से अभ्यास शुरू करेंगे हम लोग। सांस लेते हुए इनहेल, बाएं पैर को सीधा कीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए पैर को फोल्ड करते हुए वापस ले आइए। ऐसे 5 बार और सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए, फिर सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए, फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए। ऐसे 2 बार और इनहेल, स्ट्रेच योर लेग, एक्सहेल, फोल्ड। फिर से सांस लीजिए। अब यहां से एंकल को पकड़ लीजिए या काफ मसल्स को, और पैर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। जितना आप अपने पैर को सीधा रखेंगे उतना ही अच्छा आपका अभ्यास होगा। थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2 और 1। अब धीरे धीरे पैर को नीचे ले आइए, आराम की अवस्था में। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी तरह से सांस को छोड़िए। अब यहां से दोनों पैरों को यूं फोल्ड करते हुए टाइगर ब्रीदिंग के लिए, या कैट स्ट्रेच या कैट ब्रीदिंग, नाम इसके अनेक हैं। पर्पस है स्पाइनल मसल्स को स्ट्रेन देने का, पूरे स्पाइनल मसल्स में ब्लड फ्लो को अच्छा करने का, साथ ही साथ ब्रीदिंग को सही करने का। ये नॉर्मली सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, घुटने की समस्या है तो थोड़ा केयरफुल करेंगे, घुटने के नीचे कुछ रख लेंगे। अब अभ्यास को शुरू करेंगे।
Make sure that you're keeping the body in a balanced position, both the palms in line with the knee. Now let's begin. Inhale, push your spine down, head up. Exhale, make a round of the spine. Repeat it. Inhale, spine down, head up. Exhale, make a round of the spine. Repeat it. Inhale, spine down, head up. Exhale, make a round of the spine, head down. 3 बार और रिपीट करेंगे. Inhale, spine down, head up. Exhale, spine up, head down. Complete round on the spine. एक बार पुनः. Inhale, spine down. अब यहीं से दोनों पैरों के टोज को जमीन से लगाइए और हाथों में एक अच्छी पकड़ बना के रखिए जिससे आपका हाथ फिसले नहीं. और यहां से सांस छोड़ते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाएंगे. ऊपर उठा के आप स्पाइन को पीछे ढकेलते हुए कोशिश करेंगे कि अपने हील्स को, अपनी एड़ी को जमीन से लगाएंगे. इस अवस्था में बन के रहिए. जैसे जैसे आप हाथों की सहायता से पीठ को पैरों की तरफ दबा रहे हैं, आप महसूस करेंगे पैरों में एक बढ़िया खिंचाव आता हुआ. आपके स्पाइनल मसल्स भी खींचते हुए इस अवस्था को बना के रखिए. ज्यादा मूव मत कीजिए. इस पे आसन को बना के रखने से उसके ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं. एक. अब यहां से दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आए और बाएं घुटने को जमीन से रखें, जमीन पर रखें. अब यहां से ऊपरी शरीर के ऊपरी हिस्से को सीधा करें. ध्यान रखें कि आपके बाएं घुटने में यदि कुछ शिकायत है तो घुटने के नीचे कुछ रख सकते हैं जिससे उस पर कोई दबाव ज्यादा ना हो. अब लंबी सांस लें और अपने हिप को, इस पार्ट को नीचे की तरफ और सामने की तरफ ले जाने की कोशिश करें. कंधे को पीछे और दोनों हाथों को ऊपर उठा लें. हाथों को पीछे ले जाएं जिससे कि आपको आपकी पीठ पे एक पूरा खिंचाव उत्पन्न हो. ये आपके हिप के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है. ये आपके हिप मसल्स, हिप जॉइंट्स को खोलता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, स्पाइनल मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है. मेंटेन ब्रीदिंग एलिमेंट्स के लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस है. लंग्स के कैपेसिटी को इंप्रूव करता है ये. 5 4 3 2 1. वापस आ जाइए. दोनों हाथों को दोनों पैरों के, दाहिने पैर के दोनों तरफ रखिए. अब दाएं पैर को पीछे ले जाइए. एक लंबी गहरी सांस लीजिए. अब यहां से दूसरे पैर को सामने लाइए, बाएं पैर को. इसी अभ्यास को अब बाएं पैर से करेंगे हम लोग. फिर ऊपरी पार्ट को सीधा कीजिए. एक लंबी सांस लीजिए. सांस छोड़ते हुए हिप को नीचे ले जाइए ताकि आपको दाएं थाई पे, राइट थाई पे आपको स्ट्रेचिंग अनुभव हो. दोनों कंधे को पीछे ले जाइए. दोनों हाथों को ऊपर खींच के ऊपर रखिए. Pull the arms upward and keep your head in a relaxed condition, in a relaxed position. Don't force on your neck. Now, keep stretching your spinal muscles and the muscles. Take care of knee joints. Remain for 5 breathing.
5 4 3 2 and 1। वहां से वापस आइए, दोनों हाथों को नीचे रखिए। अब बाएं पैर को पीछे ले जाकर धीरे धीरे अपने हिप्स को अपने हील्स पे रखिए। इसको कहते हैं शशांक आसन। एक तरह से रिलैक्सिंग है, काफी अच्छा है स्पाइन के लिए। और सर को नीचे रखिए, हाथ को सीधा सामने। थोड़ी देर स्पाइन को आराम की अवस्था में आने दें। 5 गिनती तक यहाँ पे रुकिए। 5 4 3 2 1। वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए, दोनों पैरों को इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग एक ट्विस्टिंग पोजीशन करेंगे, एक दाएं और बाएं तरफ घूमने वाला अभ्यास, जिसको कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और किसी को अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफी अच्छा है। उसमें क्या करना है, जैसे कल हम लोगों ने किया था, बाएं पैर को मोड़ के अपने दाएं घुटने के पास यूं रख लीजिए। कोशिश कीजिए कि स्पाइन आपकी सीधी रहे, बिल्कुल ऐसे कर्व ना बनाए, सीधा आराम से आप बैठ सके। तकलीफ हो तो थोड़ा पैर को आगे की तरफ ले जाइए, जिससे आपका शरीर सीधा हो सके। अब बाएं हाथ को पीछे ले जाइए और दाएं हाथ को सीधा ऊपर लाके बाएं घुटने से क्रॉस करते हुए कोशिश ये करेंगे कि आप बाएं पैर को दाहिनी तरफ धकेल लें हाथों की सहायता से। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमा लीजिए। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं स्पाइन को। पेट में एक दबाव का अनुभव कीजिए पैर को करीब लाने की वजह से। अब इस अवस्था में बन के रहे। तीन, 2, 1। धीरे धीरे वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। पैर को सीधा कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अब इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ करेंगे, दाएं पैर को मोड़ के। अब दाएं पैर को फोल्ड कीजिए, दाएं हाथ को पीछे ले जाइए, बाएं हाथ को पहले ऊपर सीधा खींचिए ताकि आप आराम से हाथ को क्रॉस कर सके। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथ को क्रॉस कीजिए और शरीर को दाहिनी तरफ जितना आप घुमा सके घुमाइए। दाएं तरफ घुमाते वक्त ध्यान रखेंगे कि दाएं पैर को बाईं तरफ आप दबा रहे हैं, जिससे कि पूर्णतः ट्विस्टिंग का अनुभव कर सकें आप। बस इस अवस्था में बने रहिए, 6 गिनती तक इस अवस्था में रुकिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। दोनों पैरों को आराम से जमीन पे रखिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। बैठने के इस अभ्यास के पश्चात अब हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल, पेट के बल लेटिए। पैरों के बीच में थोड़ी दूरी, दोनों हाथ क्रॉस करके रखिए। यहां से अब हम लोग बैक स्ट्रेच के लिए जाएंगे।
बैक स्ट्रेच में जब हम ऊपर की तरफ उठते हैं तो ये चेस्ट मसल को एक्सपैंड करता है, जो कि हमारे लंग्स की प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है। अब यहाँ से दोनों हाथों को पैरों में दूरी रखते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाइए और उंगलियों को आपस में लॉक कीजिए। छाती जमीन के ऊपर, चिन भी जमीन को टच करता हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहां से सांस लेते हुए लंबी सांस लीजिए, शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, हाथ को पीछे की तरफ खींचिए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। कोई प्रेग्नेंट लेडीज को ना करे, किसी की रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी है वो ना करे, हार्ट प्रॉब्लम अगर सीरियस है तो ना करें। फिर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। चलिए, शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, हाथ को पीछे, बहुत बढ़िया। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। ऐसे 3 बार और दोहराएंगे। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, हाथों को पीछे खींच के रखिए। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। फिर से इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार पुनः लंबी सांस लीजिए। इनहेल, हाथों को खींच के रखिए। इस अवस्था में रुकिए थोड़ी देर, लंबी गहरी सांस लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, वापस आ जाइए। वापस शरीर को आराम की अवस्था में रखिए थोड़ी देर के लिए। एक बार शरीर आराम की अवस्था में आ चुका है, अब शरीर को दूसरी तरफ घुमा के बल लेटिए, पीठ के बल लेटिए। इस ढंग से सर्वप्रथम दाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए और दोनों हाथों से अपने दाएं घुटने को पकड़िए। अब यहाँ एक लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए पेट अंदर, पैरों को अपने पेट की तरफ खींचिए और साथ ही साथ अपने सर को उठा के अपने घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए। बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। इस अवस्था में थोड़ी देर बन के रहिए, 6 गिनती तक। पवन मुक्त आसन इस अभ्यास को कहते हैं, जो गैस की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए काफी अच्छा है, स्पाइनल प्रॉब्लम के लिए काफी अच्छा है। 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे अभ्यास को रोकिए, धीरे धीरे वापस जाइए, दाएं पैर को जमीन पे रखिए, एक लंबी तथा गहरी सांस लेके सांस को छोड़िए। अब इसी अभ्यास को बाएं पैर से शुरू शुरू करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने को पकड़िए। अब एक लंबी सांस लीजिए, फिर सांस को छोड़ते हुए पैर को पेट की तरफ खींचिए, सर को उठाते हुए घुटने से लगाइए। 6 गिनती तक यहाँ पर रुकिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस आ जाए। Start.
Sir, you are mute. इसी अभ्यास को अब आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। दोनों पैरों को बाईं तरफ और सर को दाहिनी तरफ लेके जाइए। इस अवस्था में 5 गिनती तक रुकिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए। शरीर को आराम से शवासन की अवस्था में ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों के बीच में दूरी थोड़ी देर के लिए 1 मिनट से 2 मिनट के बीच हम लोग शरीर को बिल्कुल आराम की अवस्था में छोड़ देंगे। Relax your each and every parts of the body, right from your toes to head. No more tightness or stiffness at any parts of the body. Relax your toes and your ankle joints. Relax your calf muscles and your knee joints. Relax your thigh muscles. Relax your waist muscles and your hip joints. Relax your lower back, middle back, and the upper back. Relax your shoulders and your shoulder joints. Relax your elbow joints, wrist joints, palms, and the fingers. Relax your abdominal muscles. पेट की मांसपेशियों को आराम की अवस्था में लाएं। Relax your chest muscles. Loosen your neck muscles and relax. Relax your facial muscles. Have a beautiful smile on your face. Calm down your mind. In this relaxed position, let's Om as we exhale. Inhale. Om. अब दोनों पैरों को साथ में ले आइए. Bring your legs together and take a right turn. Gently take a right turn and please take your time and come back to sitting position. सभी लोग बैठने की अवस्था में आ जाइए धीरे धीरे. सीधा बैठे. अब यहाँ से हम लोग 2 प्राणायाम करेंगे. पहला होगा भस्त्रिका, दूसरा होगा अनुलोम विलोम. तो भस्त्रिका के लिए पहले सीधा बैठ जाइए और दोनों हाथों को इस ढंग से अपने कंधे के ऊपर रखिए. हमें करना क्या है कि तेजी से सांस लेना है और हाथ को ऊपर ले जाना है. पहले मुझे देख लीजिए ऐसे, और नाक से सांस को लेना और छोड़ना है. यानी कि
इस तरीके से हमको करना है, यानी सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, अब इस अभ्यास को हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। लगातार कीजिए, लगातार करते रहिए जब तक मैं रोकने को ना बोलूं। हाँ, करते रहिए। हाँ, 15 बार और। 1 2, बहुत बढ़िया। 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सही। 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं, हाथ को नीचे रख दीजिए। सांसों की गति पे ध्यान दें, थोड़ा समय दें, सांसों की गति सामान्य हो जाए। अब यहाँ से एक बार सांसों की गति सामान्य हो गई हो तो हम लोग अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए जाएंगे। इस ढंग से आप 2 उंगलियों की सहायता से या नासिका मुद्रा ले सकते हैं। दाएं हाथ से कोशिश करें कि पीठ सीधी हो। अब यहाँ से सभी लोग आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों की गति पे लगाएंगे। अब दाएं अंगूठे से दाईं नाक को बंद कर लीजिए। अब एक लंबी सांस बाईं नाक से लीजिए, बाईं नाक को बंद कर लीजिए और गहराई से सांस को दाईं नाक से छोड़िए। फिर से दाईं नाक से सांस लीजिए, दाईं नाक को बंद कर लीजिए और पूरी गहराई से सांस को बाईं नाक से छोड़िए। फिर से बाईं नाक से सांस लीजिए, बाईं नाक को बंद कीजिए और दाईं नाक से सांस को छोड़िए। फिर लंबी सांस लीजिए दाईं नाक से, दाईं नाक को बंद कीजिए और बाईं नाक से सांस को छोड़िए। इस तरीके से लगातार इस अभ्यास को 5 बार कीजिए। आंखें बंद, शरीर में कोई और हरकत नहीं होनी चाहिए। गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान आप अपने अभ्यास पे दे रहे हैं। Observe each and every breath going in and coming out. सांसों की गति को बना के रखिए, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करना है, नाक से बहुत ज्यादा आवाज भी नहीं निकालनी है सांसों की। पूरी सजगता के साथ अनुलोम विलोम के इस अभ्यास को लगातार कीजिए। अनुलोम विलोम का यह अभ्यास हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंगर के मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा अभ्यास होता है। साथ ही साथ लंग्स के लिए काफी अच्छा अभ्यास है ये। ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाता है। एक बार और करेंगे ना अनुलोम विलोम के अभ्यास को, और ध्यान रखेंगे कि आपका अभ्यास बाईं नाक में सांस लेने के पश्चात ही समाप्त होना चाहिए। एक बार अभ्यास समाप्त हो जाए, हाथ नीचे, दोनों हाथों को छाती के सामने प्रणाम अवस्था में नमस्कार मुद्रा में ले आइए। अब हम लोग कंक्लूड करेंगे ओम शांति से। लंबी सांस लीजिए। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms
Give a dainty feather touch to your face, around of your neck muscles. धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाइए, मुस्कुराते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलिए। धन्यवाद आप सभी का। भगवान आपका दिन मंगलमय करे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, योग के इस पथ पे आप अग्रसर रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। धन्यवाद।